This is a question of direct and inverse variations. Question number 6, solution. I am reading the question. A train 150 meter long is running at a speed of 72 kilometer per hour. It crosses a bridge in 13 seconds. Find the length of the bridge. Students, you can see here speed is given in kilometer per hour, whereas the length of the train is in meter. Even the time is also in seconds. So we need to convert speed into same units, that is meter per second, right? So first you can write speed of train. Speed of train is how much? 72 kilometer per hour. We need to convert it into meter per second. You know very well that in 1 kilometer there are 1000 meters are there, and in 1 hour there are 3600 seconds. In rough work, you can cut 1000 and 3600. You will get 5 upon 18. So directly we can multiply 72 into 5 upon 18 meter per second. 18 ones are 18 fours are, and 5 fours are is 20 meter per second. After speed of the train, you are given time taken by train. Time taken by train. How much time is being taken by the train? 13 seconds. You are given what? Length of train. Length of train also. And the length of train here is 150 meter. We are not given length of bridge. So we will assume let length of bridge. It will be assumed as x meter. Now when the train has crossed the bridge, so we will write distance covered by train. Distance covered by train after crossing the bridge. After crossing the bridge. So what will it become? It will be length of the train plus length of the bridge. So 150 plus x meter. Now you need to apply the formula. We know that the formula which is connecting the three things, speed, time and distance. So speed is equal to distance upon time. So if we cross multiply, we can write distance is equal to this into this, speed multiplied time. How much is the total distance? It is 150 plus x. And speed you have converted into meter per second, that is 20. And time is 13. So 150 plus x is equal to 13 twos are 26, 260. So x will be equal to 260 minus 150. In the bracket I have written it is meter. So x will be equal to 260 minus 150. It is 110 meter. And this is only the length of the bridge. Therefore, length of the bridge is equal to 110 meter. Now after doing question number 2, I am taking question number 7 of squares and square roots. Question I have written already. What least number must be added to 5607? Students, you must know those numbers which are ending with 2, 3, 7, 8. दे आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर. तो हमें इसको देखकर पता चल जाना चाहिए कि इसके एंड में 7 आ रहा है. इट मींस इट इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. सो व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर. पहले तो लीस्ट नंबर निकालना, फिर दूसरा पार्ट है परफेक्ट स्क्वायर निकालना, और तीसरा पार्ट है स्क्वायर रूट निकालना. तो यू विल राइट 5607. ये ना थोड़ा थोड़ा खुला खुला लिखना है, तंग सा नहीं लिखना है. नाउ पेयरिंग कहां से होती है? फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट. तो एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना.
अब आपने स्क्वायर्स के टेबल पढ़ने हैं। 2 2 जार 4, 3 56 तक, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64। 64 तो ज्यादा हो गया। 7 7 जार 49, तो 16 माइनस 9 is 7 और यहां पर तो ब्लैंक आ गया, दिस इज 0 7। अब डबल ऑफ दिस 7, 7 2s are 14, या आप 7 प्लस 7 बोल लो। अब आपने 14 का टेबल 70 तक रीड करना है। 14 4s are 56, 14 5s are 70, तो ये तो 14 ऑलरेडी था, आपने बोला 14 5s are, तो एक 5 इधर एक इधर, मल्टीप्लाई करके देखो 725। जब भी क्वेश्चन एडिड का होगा हमें इस नंबर के नीचे बड़ा नंबर लिखना है, बिगर नंबर। और जब क्वेश्चन ये सब्ट्रैक्टेड का होगा तो वी वर टू डू 144 इंटू 4, तो यहां करेंगे 5 और इसके नीचे आएगा 725। आप बोलोगे स्मॉलर नंबर के नीचे बिगर नंबर आ रहा है, नो प्रॉब्लम, वी विल बी मार्किंग द साइन दिस वे that we are subtracting from this number. So 725 minus 7 is 18, right? So 18 is the least number which should be added in 5607 to make it a perfect square. तो आप लिखोगे therefore least number to be added, least number to be added, that is equal to 18. अब 18 तो आ गया। नाउ वी आर टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। कैसे? परफेक्ट स्क्वायर ये कैसे बनाना है? 5607 में आपने 18 को ऐड कर देना है दिस वे, सो इट विल बिकम 5625। अब ये 5625 जो आया ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट पता कितना होगा? जो आपका यहां आंसर में आया था 75. So this is also very important question of squares and square roots. अब करते हैं पैरेलल लाइन का क्वेश्चन, राइट? इन दिस गिवन फिगर एंगल ए इज गिवन ऑफ 75 डिग्री, राइट? एंड सीई इज गिवन पैरेलल टू ए बी, ये गिवन में है सारा। एंगल ECD is given equal to 40 degree. Find other two angles of the triangle ABC. A तो दे ही रखा है, इसका मतलब आपको एक B निकालना है और एक निकालना है C, right? In our previous videos we have already done this. अब इसको आप 1 दे दो नंबर, इसको आप 2 दे दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो और इसको 5 कर दो। इजी रहता है नंबरिंग से, राइट? अब आप क्या करोगे? ए बी पैरेलल सीई, ए बी पैरेलल सीई एंड इसे ट्रांसवर्सल ले लोगे AC को, AC बी अ ट्रांसवर्सल, पूरा भी लिख सकते हो, स्पेलिंग उतना भी लिख सकते हो, ट्रांसवर्सल। तो दिस एंगल 1 एंड 2 ध्यान से देखना है, ये कौन सी नेचर के होंगे? एक ऐसे है और एक ऐसे है। दे विल बी ऑल्टरनेट, ALT कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, इंटीरियर को INT कर सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपके पास एंगल 1 तो दे रखा है, सिंस एंगल 1 कितना है? 75 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल 2 विल ऑल्सो बी 75 डिग्री। अब या तो आप यहां स्ट्रेट एंगल लगा लो प्रॉपर्टी, या लीनियर पेयर लगा लो। तो नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, अगर मैं इसे लिख दूं 180 डिग्री, तो आई कैन राइट इट एट अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब जो तो एंगल्स आपके पास हैं उनकी वैल्यू पुट कर दो। 3 की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। 2 की वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड आउट कर ली 75 डिग्री, और एंगल 4 को एंगल 4 ही कर दो 180, बिकॉज दैट इज अननोन। अब आप ऐड कर दो,
115 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप एंगल 4 फाइंड आउट कर लो। 180 डिग्री में से 115 डिग्री माइनस कर दो, 65। और इनफैक्ट एंगल 4 का नाम हम ACB भी लिख सकते हैं और सिर्फ एंगल C भी बोल सकते हैं, 65 डिग्री। अब एंगल A भी आ गया, एंगल B भी, सॉरी C भी आ गया और B निकालना है। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। तो लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब A कितना है? 75 डिग्री। B आपके पास नहीं है। C अभी अभी आपने फाइंड आउट किया 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 75 प्लस 65 इज 140 डिग्री। ये इंप्लाइज का साइन लगा दिया करो। प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो ये आएगा एंगल B कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। So we have found angle B also and angle C also which were not given to us. अब एक क्वेश्चन करते हैं एल्जेब्रिक का, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टराइज 5x स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट 35 xy माइनस 2 अंडर रूट 7 yz, और एक और टर्म है प्लस 2 अंडर रूट 5 zx, राइट? सोल्यूशन। तो ये अंडर रूट को देखकर डरना नहीं है, दीज आर नॉट डिफिकल्ट, इजी है बिल्कुल। सबसे पहले आप ये जो 3 टर्म्स हैं इसमें आपने सर्च करना है कि कौन सी टर्म्स 2 नेगेटिव हैं। तो एक तो ये है और एक ये है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में आपने ये देखना है कि ये जो इसमें वेरिएबल्स लगे हैं जैसे एक्स वाई और वाई जेड लगे हैं, उनमें सेम वेरिएबल कौन है? तो सेम वेरिएबल तो वाई वाई है। तो अब आपने स्क्वेयरिंग करते टाइम वाई वाली टर्म को नेगेटिव लिखना है। और अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होता है, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 होता है। तो आप इसे क्या करोगे? अंडर रूट 5x का होल स्क्वेयर कर दोगे और अपने माइंड में बोलोगे a स्क्वेयर प्लस, मैंने बोला ना y वाली टर्म को नेगेटिव करना है क्योंकि यहां पर y कॉमन था, तो यहां आपने करना माइनस अंडर रूट 7y का होल स्क्वेयर। माइंड में क्या बोला? प्लस b स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर। z स्क्वेयर को तो आप z का होल स्क्वेयर ही लिखोगे, प्लस बोल के रहे हैं a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 2ab। 2 इंटू a क्या था? अंडर रूट 5x था, इंटू बी क्या था? माइनस अंडर रूट 7y। तो माइनस वाली टर्म को प्रेफर किया करो ब्रैकेट में लिखना। तो ये बन गया प्लस 2ab। अब करना प्लस 2bc, 2 इंटू बी फिर से माइनस अंडर रूट 7y इंटू सी z आएगा, प्लस 2ca, तो 2 इंटू z इंटू ए आ गया अंडर रूट 5x। अब आपने आइडेंटिटी तो की है ऑलरेडी। यूजिंग आइडेंटिटी, जैसे ये बना वैसे ही आइडेंटिटी लिखनी है। कई बच्चे पहले लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, वो पहले नहीं लिखना। पहले लिखना आपने a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जैसे बना है प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये किसके इक्वल बनेगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। अब
ए की वैल्यू क्या है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखी, √5x लिखा ना ए, तो ए तो ये है। बी क्या है, -√7y। अब देखो यहां पर ये ब्रैकेट में लिखा, 2 बार स्मॉल ब्रैकेट नहीं लिखनी थी, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखी थी, प्लस z एंड इट इज होल स्क्वायर। अब आप इसको ब्रैकेट्स को ओपन करो, √5x प्लस एंड माइनस √7y प्लस z होल स्क्वायर। अब जैसे आप 7 का स्क्वायर को 7 × 7 लिखते हो, आप इसको भी एक्सपेंड करके 2 बार लिख दो, -√7y प्लस z, स्क्वायर रिमूव किया ना तो 2 बार लिख दो, √5x माइनस √7y प्लस z। तो दिस वे वी हैव फैक्टराइज्ड दिस। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस